آج کی خبروں میں ایک سنسنیخیز موڑ آیا جس میں اسرائیل کے تازہ ترین نقشے نے عالمی سطح کے اوپر ایک تہلکہ مچا دیا۔ اسرائیل نے ایک متنازع نقشہ شائع کیا ہے جس میں فلسطین، لبنان اور شام کے کچھ حصوں کو اپنے دائرہ اختیار میں شامل کرنے کا دعویٰ کیا گیا، جسے عالمی سطح پر شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ اس نقشے کے منظر عام پہ آنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں کشیدگی نے نئی شدت اختیار کر لی ہے اور فلسطینیوں نے اس اقدام کو اپنے حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے غزہ اور مغربی کنارے میں اپنے حملوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں فلسطینی بچے اور خواتین شکار ہوئے اور ان کی تعداد میں اضافے نے عالمی برادری کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ اسرائیل کی تازہ کارروائیاں خاص طور پہ اس متنازع نقشے کے پس منظر میں ایک نئے بحران کا باعث بن رہی ہیں، جس کا اثر پورے مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور فوجی منظرنامے پر پڑ جائے گا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب عالمی طاقتیں اسرائیل کے ان اقدامات کے خلاف مضبوط رد عمل کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک کسی نے عملی قدم نہیں اٹھایا۔ اسرائیل کی جانب سے نقشے کی تبدیلی اور فوجی کارروائیوں کی تیز رفتاری نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ فلسطینی لوگ یہ آہو بکا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، قطر نے اسرائیل کی جانب سے شائع کردہ ان نقشوں کی مذمت کی ہے جن میں عرب خطوں کو اسرائیلی سرزمین کے طور پہ دعویٰ کیا گیا۔ یہ نقشے متنازع علاقوں بشمول فلسطین، شام اور لبنان کے کچھ حصوں کو اسرائیلی سرزمین کے طور پہ دکھاتے ہیں، جس پر تنازع کھڑا ہوا ہے۔ قطر کی مذمت اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیل کے علاقے پر قبضے اور بین الاقوامی معاہدوں اور قراردادوں کی نظر اندازی پر تشویش ہے۔ قطر نے ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کی اور فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ایسے نقشوں کی اشاعت ایک اشتعال انگیز قدم سمجھا جاتا ہے جو خطے میں امن کی کوششوں کو کمزور کرتا ہے، خاص طور پہ اسرائیلی اور فلسطینی تنازع کے تناظر میں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ان تمام اقدامات کی سخت مخالفت کی جو بین الاقوامی قانون اور عرب اقوام کے زمین کے حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ ہے، جہاں اسرائیل کی پالیسیز اور اس کے علاقائی دعووں پر عرب ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے شدید رد عمل آ رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، سلطان عبد الحمید ثانی تخت کے اوپر براجمان تھے اور ان کے پاس ایک شخص کا خط آتا ہے۔ وہ شخص ایک یہودی تھا جس کی طرف سے التجا یہ منظر عام پہ آتی تھی کہ فلسطین کا حصہ یہودیوں کی آباد کاری کے لیے ان کو مہیا کر دیا جائے، اس کے بدلے دنیا کی جتنی دولت لینی ہو آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ سلطان کی جانب سے صاف الفاظ میں انکار کیا جاتا۔ وہ شخص دوبارہ سلطان تک رسائی کے لیے مختلف اعلی کاروں کو بیچ میں ملوث کر کے سلطان کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ سلطان اپنی نشست کے اوپر براجمان ہوتا ہے اور وہ شخص سامنے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ بتاؤ فلسطین کی زمین کے ٹکڑے میں تمہیں کتنا روپیہ چاہیے، تمہیں کتنا سونا چاہیے۔ سلطان کے چہرے پر جلال آتا ہے۔ سلطان چھڑی کے سہارے کھڑا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں ایک بالشت بھی فلسطین کی زمین کا ٹکڑا تمہارے حوالے کروں گا تو یہ تمہارے دماغ کی اختراع ہو سکتی ہے۔ جواباً سلطان اسے کہتا ہے کہ میری زندگی میں تو یہ زمین تمہیں میسر نہیں آ سکتی، یہ میرے آباء و اجداد نے اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل کی تھی۔ یہ ارض بیت المقدس ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، اور اگر اس کی جانب دوبارہ تمہاری کسی بھی خواہش کا اظہار دیکھا گیا تو تمہارے ساتھ سخت رویے سے پیش آئے گا۔ وہ شخص اسرائیل کے بانیوں کے اندر شمار ہوتا ہے اور آج اسی گریٹر اسرائیل کا تصور جو ہے وہ بنجامن نیتن یاہو کے ہاتھوں پورا کرنے کی اسرائیل تیاری کر رہا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا تصور ایک متنازع نظریہ
जिसमें इजराइल की हुदूद को मौजूदा इजराइल से बाहर तक वसी करने का ख्याल पेश किया जाता है ताकि फलस्तीन, उर्दन, शाम और लबनान के कुछ हिस्से शामिल हों। यह तसव्वुर खास तौर पे बाज इजराइली कौम परस्त और दाएं बाजू के ग्रुप्स में मकबूल है, जो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि इजराइल को एक बड़ी रियासत के तौर पे कायम किया जाना चाहिए। इजराइल की फौजी कार्रवाइयां और आबादकारी की पॉलिसी इस नजरिए की हकीकत होने का एक मुमकिन इशारा। याद कीजिए 1967 की 6 रोजा जंग, उसके दौरान इजराइल ने मगरबी किनारे, गजा, जोलान की पहाड़ियां और मशरकी यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया था। जोलान की पहाड़ियां, जिसे अब गोलान की पहाड़ियां भी कहा जाता है, उन इलाकों में इजराइली आबादकारों की बस्तियां कायम की जाती हैं। इजराइल ने यरूशलेम को अपनी अबदी दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया और मशरकी यरूशलेम में फलस्तीनियों के हुकूक को नजरअंदाज किया, जो ग्रेटर इजराइल के तसव्वुर को तक़वियत देते। इजराइल की हालिया पॉलिसीज जैसे फलस्तीनी इलाकों में छापे, घरों की मिसमारी, फौजी कार्रवाइयां, ये इस बात का इजहार है कि इजराइल का मकसद उन इलाकों को अपने दायरा इख्तियार में शामिल करना हो सकता है। इसके अलावा इजराइल की आबादकारी की पॉलिसी और फलस्तीनी इलाकों पर मुसलसल कब्जा ग्रेटर इजराइल के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने की कोशिशें, ये तमाम इकदामात आलमी सतह के ऊपर मतनाज़े हैं और इनकी मुखालिफत की जाती है। लेकिन इजराइल की कार्रवाइयों से ये जाहिर होता है कि ग्रेटर इजराइल का नजरिया उसकी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है। दूसरी तरफ फलस्तीन की मज़ामती तंजीमें, हमास ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी का जवाब दिया जिसमें उन्होंने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने की बात की। हमास ने उस इक़दाम को मुस्तरद करते हुए फलस्तीनी हुकूक और आज़ादी के लिए अपनी मज़ाहमत को जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। हमास ने यह भी कहा कि अमरीका, जो इजराइल के साथ इत्तेहाद में है, इजराइल के कब्जे और फलस्तीनी अवाम पर मजालिम में बराबर का शरीक है और ये रद्द-ए-अमल हमास और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी को उजागर करता है। मशरिक़ वस्ता में सियासी और फौजी मंजरनामे की पेचीदगियां मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। यही नहीं, अमरीकी फौज ने यमन में हौसियों के असलहा डिपो पर फजाई हमले किए हैं और ये हमले हौसी ग्रुप की फौजी सलाहियतों को नुकसान पहुंचाने की जारी कोशिशों का हिस्सा हैं, जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल है। इस हमले में हदफ बनाया गया असलहा डिपो हौसियों के असलहे को जखीरा करने और तैयार करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जिसका मुमकिन इस्तेमाल इजराइल जैसे इलाकाई अहदाफ के खिलाफ किया जा सकता था। ये फजाई हमले खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी को जाहिर करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यमनी हौसियों के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पे ये तंबीह जारी की थी कि अगर हमारे ऊपर हमला किया जाएगा तो हम गजा में फलस्तीनियों का साथ देने से इनकार ही नहीं हो सकते। उनकी तरफ से वाज़े तौर पे एक मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि मगरबी कुव्वतों के सामने अपना सरे तस्लीम खम करके उनकी बैत कर ली जाए। दूसरा रास्ता ये कि खुदा की मखलूक और अर्ज़ बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए गजा के फ़लस्तीनियों की हिमायत की जाए, और हमने दूसरा रास्ता चुनने को तरजीह दी है। तो ऐसे वक्त में इजराइल के साथ साथ अमरीका का मुखालिफ हो जाना क्या अमरीका के लिए भी मुस्तक़बिल करीब में एक बड़ी बेचैनी का बायस होगा या नहीं होगा? गजा में सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है, क्योंकि इजरायली बमबारी का सिलसिला बेपनाह शिद्दत से जारी है, जिसके नतीजे में ख़वातीन और बच्चों की मज़ीद शहादतें हो रही हैं। ये हमले इंसानी हालात को मज़ीद बदतर बनाते चले जा रहे हैं और ज़ख्मी अफराद की तादाद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें, UNO, UNFL, यूरोपीय यूनियन, हर जगह पे मज़म्मती करारदादें तो मंजूर होती हैं, लेकिन गजा वालों की तिब्बी इमदाद तो दूर की बात, बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की फराहमी को भी मुमकिन नहीं बनाया जा रहा। गजा के डॉक्टर इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल की मुसलसल बमबारी के दरमियान जख्मियों का इलाज करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तिब्बी अमले ने अपनी हालत को मिशन इम्पॉसिबल करार दिया है, क्योंकि जख्मियों की बड़ी तादाद, तिब्बी सामान की कमी और अस्पतालों और क्लिनिक्स की तबाही ने इलाज को मजीद मुश्किल बना दिया। गजा के सबसे बड़े अस्पताल को गैर फाल करने के बाद, उसके डॉक्टर अबू सफिया को गिरफ्तार करने के बाद, उन्हें ऐसे मकाम पर मुंतकिल करने के बाद कि जिसने दुनिया भर में डॉक्टर्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई, जिसने बैनुल-अक़वामी सतह पे UNO को मजबूर किया कि एक मज़म्मती करारदाद मंजूर करे, तो उसके बाद डॉक्टर्स के लिए काम करना कितना मुश्किल हो सकता है। गजा के डॉक्टर इंतहाई दबाव में हैं, उनके पास बुनियादी तिब्बी सामान नहीं है, अद्वियात तक रसाई नहीं है, मरीजों का मौसर इलाज नहीं है, सूरत हाल मजीद पेचीदगी का शिकार है।
नाका बंदी हो रही है, जिसके बायस इंसानी इमदाद और तिब्बी सामान की फराहमी के ऊपर सख्त पाबंदियां हैं। तिब्बी बरादरी, आलमी बरादरी से ये कह रही है कि कहीं होश के नाखुन लें, उठें, आवाज बुलंद करें और इस तरह का कोई रास्ता निकाला जाए कि जिससे इंसानियत जो मरती हुई है उसकी नब्ज को दोबारा जिंदा किया जा सके। लेकिन इजरायली अफवाज मकबूजा मगरबी किनारे के एक स्कूल में असातिज़ा और तलबा पर आतिशी गैस फायर करती है, जिसके नतीजे में इलाके में हलचल मचती है और ये वाकया एहतजाज या झड़प के दौरान पेश आता है और कशीदगी जिसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। पहले घरों की मसमारी की, बाद में ये कहा गया कि नाबलस का हाल जबालिया की तरह कर दिया जाएगा और अब टीयर गैस का इस्तेमाल करके बराह रास्त बच्चों और असातिज़ा के ऊपर असरअंदाज होना जंगी कवानीन की खुली तौर पे खिलाफ वर्जी है। जो वाक़ये मगरबी किनारे में पेश आ रहे हैं, ये याद रहे कि जब हमास उठी, जब यमनियों ने अहद कर लिया, जब हिजबुल्लाह ने अली का नारा लगाया और फिर से बरसरे पैकार होकर हमला आवर हुए, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि जब इजराइल की कैद में मौजूद हमास के रहनुमा फिर बवांगे दोहल उठेंगे और उनके हलकूम से जो नारे निकलेंगे वो इजराइल की बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। गजा के खान यूनस में रात के वक्त होने वाला सबसे तशवीशनाक हमला कम से कम 20 अफराद को मौत की वादी में उतार गया था। इजरायली फजाई हमलों ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, कई अफराद मारे गए, कई खानदान मलबे के नीचे दब गए, इमरजेंसी टीमें जिंदा बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ अमल दिखाई। गजा के जनूबी हिस्से में खान यूनस का जो वाकया है वो एक अहम मरकज है जो जबालिया या रफा या दीरुल बला या इस तरह के मुतअद्दिद मकामात से ज्यादा इस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और ये हमले गजा में जारी तनाज़े के दौरान मजीद मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। वक्त इंतजार है कि अमेरिका में तब्दीली इक़्तिदार के वक्त कलम की जुम्बश क्या इस जंग के खात्मे का बायस बन सकती है या खित्ते में नक्शे के ऊपर मजीद लकीरों को खींचना। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।